رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. Honorable Prime Minister Jammu Kashmir, Raja Nijawat Sahab, Nafiz Zikriya Sahab, distinguished parliamentarians, panelists, organizers, Youth Association of Pakistan, سب کو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آرگنائزرز کو خاص کر راجہ صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج 5 جنوری کے حوالے سے جس کو کشمیری عقیدت سے اس دن کو نہ صرف مناتے ہیں بلکہ اقوام متحدہ سے یہ سوال پوچھتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان 5 جان 1949 جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، جو پلبسائٹ فری اینڈ فیئر کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اور آپ کی جو کلاز ہے 7 جس میں آپ نے یہ ایمفیسس دی اور کمٹمنٹ کی کہ آپ کو مذہب کے، مسلک کے، مائنورٹی کے بیس پہ نہ کبھی بھی پریشرائز نہیں کیا جائے گا، آپ کو برائب نہیں کیا جائے گا، آپ کو کسی طریقے سے سپریس نہیں کیا جائے گا، آپ کی آواز بند نہیں کی جائے گی، بلکہ آپ کو حق رائے دہی کا حق دیا جائے گا. 72 سال گزرنے کے بعد آج پوری دنیا اور خاص کر میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی پریزنس کا فائدہ اٹھاؤں، اور یہاں پہ بڑے اسٹالورٹس بیٹھے ہیں. جہاں تک رول آف اے پارلیمنٹ یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات ہے، جو رول راجہ نجاوت صاحب نے پلے کیا اور ان کی ٹیم نے پلے کیا، یا کشمیری ڈائسپورا ایز اے ہول جو پلے کیا، وہ خراج تحسین کے علاوہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اسی طرح نفیس ذکریہ صاحب کو میں نے دیکھا انگلستان میں 5 اگست جب 35 اور 370 ایبروگیٹ کیا گیا ہندوستان نے، تو میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اور اس انٹریکشن کے علاوہ میں 6 یورپین کنٹریز میں گیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میری فلائٹ تھی یہاں سے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب MQM سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، یہاں پہ میری بہن نورین ابراہیم صاحبہ بیٹھی ہیں، یہ سٹیک ہولڈر ہیں. ان کے گھر میں الحاق پاکستان کا فیصلہ سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں ہوا تھا. یہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور میں نے ہر جگہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو اور آپ کو ریچ آؤٹ کیا. سٹینڈنگ جب بھی ہماری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، پہلا انویٹیشن آپ کو، اینڈ وی پرووائڈڈ این اپرچونٹی کہ آپ ہمیں بتائیں، ہمیں گائیڈ کریں اور ہم مل کے آگے جائیں. آنریبل پرائم منسٹر صاحب، جہاں تک بات ہے ٹانگیں کانپنے کی، ابھی نندن کسی کو نہیں بھولا. پرائم منسٹر اور اس حکومت میں اور ریاست پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز میں کشمیریوں کی، ایلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیریوں کی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، ان کے جوانوں، بچیوں کو، ان کو عزتوں اور ان کی سوچ کو سلام ہے. ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے تمام بزرگ، جوان، بہنوں اور بچوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سلام ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کے 10 اضلاع کے تمام سٹیک ہولڈرز کو سلام ہے. لیکن آنریبل پرائم منسٹر صاحب، پاکستانی قوم کا بچہ، میں قبائل ہوں، پاکستانی قوم کا بچہ، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، خیبر ایجنسی، اورکزی ایجنسی، کرم ایجنسی، مومن، باجوڑ، یہ تمام، اور ایفارز اور تمام سیٹلڈ ایریا کے پشتون، چاہے وہ یوسف زئی ہیں، چاہے وہ خٹک ہیں، چاہے وہ جس سوچ کے ہیں، چاہے وہ افریدی ہیں، شنواری ہیں، داوڑ ہیں، مسعود ہیں، مومند ہیں، باجوڑی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایسے سیسا پھیلائی دیوار تب بھی کھڑے ہوئے تھے، آج بھی کھڑے ہیں الحمدللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. اور بات یہاں نہیں رکتی پرائم منسٹر صاحب، پنجاب کے، چاہے وہ آرائی ہیں، چاہے وہ ڈوگر ہیں، چاہے وہ چودھری ہیں، چاہے وہ کوٹھار بیلٹ کے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ آف پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے، پنجاب کا کونا کونا کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے. اور اسی طرح سندھ، چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہے، چاہے وہ سینٹرل سندھ ہے،
चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वहां का बलोच है, चाहे वहां का पश्तून है, बरोई है, वो आपके साथ ऐसे खड़ा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान की सिविल आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की तमाम सोच, पाकिस्तान के एकेडेमिया, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद, धरती मां के बाद एक चीज है, जिस तरह कहा जाता है कि नो फादर विदाउट अ डॉटर, इसी तरह नो कश्मीर कॉज विदाउट anything related to the commitment of the people of Pakistan with Kashmir cause, inshallah. That is the sole commitment. हम यहाँ blame game नहीं करने आए। आप आजाद कश्मीर के नहीं, मेरे भी आजाद कश्मीर के, मेरे लिए भी प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको हमेशा बाप को और बुजुर्गों को इज्जत दी, अभी भी मैंने आपके घोड़ों को हाथ लगाया। क्यों लगाया? You deserve it and you have earned it. लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, जब बात आती है आपने अपनी स्पीच में कुछ चीजें, और ये चीजें क्योंकि EU खासकर यूरोप डिसइंफो लैब ने 115 ममालिक में 750 लैब्स के जरिए जितना गुमराह कुन झूठ बोला, हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर, आज पूरी दुनिया के सामने उनका मकरू चेहरा सामने आ गया। आपको पता है कि हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान की मोदी हुकूमत ने कहा कि जी हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को कश्मीर लेके गए। वो झूठ था, वो पार्लियामेंटेरियंस थे ही नहीं। उन्होंने यूएन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की तस्वीरों को पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के हवाले से एक अलग रंग दिया। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ह्यूमिलिएट पाकिस्तान, आइसोलेट पाकिस्तान। पाकिस्तान की मिलिट्री को जो स्ट्रेंथ है, बुनियाद है इस रियासत की, उन्होंने सिविल मिलिट्री के अलावा सी पैक, बलोच, फॉल्ट लाइंस पे काम करने की पूरी कोशिश की, और उस झूठ को उन्होंने इतने हद तक फैलाया कि 15 साल से हर फोरम में वो झूठ बोलते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपोज हो गए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, कौन कहता है कि आपको बात करने की इजाजत नहीं? आज आपने खुल के बात की, मीडिया के सामने बात की, आप ग्लोबली डिफरेंट फोरम्स पे गए। प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर और आप और आपकी टीम, अभी कोविड की वजह से हम रुके हुए, हमने बाकायदा प्लान किया हुआ है। इसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की इंडोर्समेंट है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की इंडोर्समेंट है कि टुगेदर एज अ टीम वी विल वर्क एंड डू द नीडफुल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मैप की बात की, इससे पहले क्यों वो कमिटमेंट नहीं थी? आपने गुरदासपुर की बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा जो बच्चा एमफिल, पीएचडी या जो स्कॉलरशिप के अलावा जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बच्चा पढ़ता था, और जब भी वो कश्मीर के हवाले से, अपनी आइडेंटिटी के हवाले से, या कश्मीर के बच्चे या बच्चियां अपनी आइडेंटिटी के हवाले से जब वो देखते थे, तो पाकिस्तान के मैप में उसकी जगह नहीं और डिस्प्यूटेड, और हिंदुस्तान उसको अपने मैप में दिखाता था। बच्चों ने कांटेक्ट करना शुरू किया, आवाज उठनी शुरू हुई। 72-73 साल ये पॉलिटिकल मैप में पाकिस्तान की वो कमिटमेंट, जो शहरक जिसको कहा गया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो क्यों नजर नहीं है? हमने तमाम इससे पहले फॉरेन ऑफिस में आज पूरी पाकिस्तानी कौम को कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एएनपी, एमक्यूएम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की टॉप लीडरशिप को बुलाया गया, और क्या कहा गया प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी पार्टी की लीडरशिप ने कि मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। अंदर बात कुछ, बाहर बात कुछ, ये वो चीज है जिसको हमने एड्रेस करना है। अगली चीज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मोदी, आपने कहा मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। मोदी ने अगर मास्टर स्ट्रोक खेला होता तो आज हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, तमाम अकलियत और तमाम कश्मीरी और इवन सिख आज क्या कहते हैं कि जिन्ना सही थे और हम गलत थे। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि मोदी जो फाशिस्ट अप्रोच है, जो एक्सपेंशनिस्ट डिजायर है, जो इंफॉर्मेशन टेररिज्म कर रहा है, डेमोग्राफिक टेररिज्म कर रहा है, और वो जो खासकर माइनॉरिटीज को जिस तरह वो बुली कर रहा है, घर वापसी प्रोग्राम, वो पूरी दुनिया के सामने उसका मकरू चेहरा सामने आ गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंटरनेशनल मीडिया क्यों पहले कवर नहीं करता था? यूरोपियन यूनियन, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसी तरह यूएस कांग्रेस, 24 से लेकर 30 सेनेटर्स ने पोम्पियो को लिखा। अराउंड 700 डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस ने मुख्तलिफ तरीकों से कश्मीर के ऊपर अपनी आवाज उठाई। आज फ्रेंड्स ऑफ लेबर हो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज,
चाहे वो इंग्लिस्तान में हो, इसी तरह चाहे डेनिश पार्लियामेंट, चाहे वो स्कॉटिश, खासकर जो डेनिश और फिर उसके अलावा नीदरलैंड पार्लियामेंट हो, मुख्तलिफ पार्लियामेंट में इस पे बात शुरू हो गई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर्स इज कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमने किसी से डिक्टेशन नहीं लेनी कि हमें कोई कहे। ये नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की, नंबर 1 न्यूक्लियर एंड दूसरा कश्मीर, इस पे कोई सौदेबाजी माई कलाल कर नहीं सकता। ये कौम उसको जीने का हक भी नहीं देगी जो इन पे कॉम्प्रोमाइज करेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज आपने बताई कि कश्मीर के हवाले से खबर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, मैं 2 माह से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज अभी भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की, राजा निजामत साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं मिलना चाहता हूं। क्यों मिलना चाहता हूं? नंबर 1, एकेडेमिया। हमने एकेडेमिया को ग्लोबल लेवल पे नेटिव बिल्डिंग के लिए हवाले से एकेडेमिया को एंगेज किया। डॉक्टर फाय, डॉक्टर नबी, डॉक्टर अमजद खान, ये अमेरिका में वो बैठे हैं जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के वो स्टॉलवर्ड्स हैं जिनको दुनिया वैल्यू करती है। उनके यूनिवर्सिटीज में कश्मीर पे नैरेटिव नहीं आता, हिंदुस्तान का नैरेटिव आता है। सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोस लाइन कि कश्मीर की आवाज भी यूनिवर्सिटीज के जर्नल्स में पहुंचे, आर्टिकल्स लिखे जाए और दुनिया को और ग्लोबल की स्टेक होल्डर्स को प्रेशराइज किया जाए। डिजिटल एरेना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, बच्चा और बच्ची जब किसी भी तरीके से गूगल पे कश्मीर के हवाले से कोई सर्च करते हैं, इंडियन नैरेटिव आता है। वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू गूगल, टू एप्पल, इसी तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी तरह ट्विटर, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को एंगेज किया, प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर को एंगेज किया, आपके बाकी स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया। इसी तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, यूथ एम्बेसडर्स को कश्मीर के पाकिस्तानी के व्लॉगर्स बने, ब्लॉगर्स बने, वो जो हिंदुस्तान हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर से मेरे बच्चों को और बच्चों के ज़हनों को डिवाइड कर रहे हैं, आप उनको बताएं कि वेयर वी स्टैंड एज अ कश्मीरी, कश्मीर के 10 असला। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मेरा प्राइम मिनिस्टर, आपके ये अल्फाज हैं कि वो मुझे वैल्यू करते हैं। क्यों ना वैल्यू करें? प्राइम मिनिस्टर साहब आपको वैल्यू करेंगे बिकॉज अल्लाह ने आपको वो ओहदा और इज्जत दी है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, यहां पे बात नहीं रुकती। अनदर एरिया, IPU, इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस एंगेजमेंट ग्लोबल लेवल पे, इसी तरह रीच आउट करना 22 ग्लोबल फोरम्स को, पोप को रीच आउट करना, मूवर्स एंड शेकर्स को रीच आउट करना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, इसके बाद ह्यूमन राइट, सिविल सोसाइटी को एंगेज करना, पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंटरेक्टिव सेशंस करना। हमने थिंक टैंक्स के साथ अभी एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के साथ, कि वो हमें रिसर्च करके बताएं और हम दुनिया के सामने रिसर्च ओरिएंटेड प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक अप्रोच और पार्लियामेंट्री अप्रोच के जरिए हम हिंदुस्तान को ग्लोबली एक्सपोज करें। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आज का दिन यूनिटी का दिन है, यूनिटी का दिन है। हिंदुस्तान हमें चाल में फंसाना चाहता है, हिंदुस्तान खुद उस चाल में फंस गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मोदी हैज बीन एक्सपोज टू द कोर, अंदर से आवाजें आनी शुरू हुई हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, एंड में आपको मैं एक चीज बताता चलूं, हमेशा हमेशा इख्तिदार रब का होता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, 6 माह 5 माह की बात नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कश्मीर कॉज के लिए, पाकिस्तान धरती मां के लिए, मफादात पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए हम एक हैं इंशाअल्लाह। वी विल कीप ऑन एक्सपोजिंग इंडिया। और बात यहां नहीं रुकेगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वी हैड द एबिलिटी टू रेज आवर वॉइसेस फॉर द ऑप्रेस्ड वंस एंड वी विल कीप ऑन। गिलानी साहब से पूछें, उनके पूरे खानदान से पूछें, और फिर वो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस, हाफिडोस, पैलेट गन्स, वो तमाम मेरी और इस उम्मत की और हम सब की माए बहनें बेटियां जिनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, वी आर देयर वॉइस इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। पश्तो में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हर से बया कवल शम खो ईमान निशम बया कवल। सब कुछ खो सकता हूं, ईमान नहीं खो सकता। सब कुछ गवा सकता हूं, कश्मीर का कभी सोच भी नहीं सकता। ये हमारा ईमान है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, एंड वी आर कमिटेड विद दिस। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इन द एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, अच्छा लगता है आप दिल से बोलते हैं,
ہمیں بھی ذرا گلے لگا لیا کرے, میں بھی آپ کا چھوٹا ہوں, زیادہ ناراضگی اچھی نہیں ہوتی. آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ابھی آج مجھے ٹائم دیتے ہیں تو میں بھی آتا ہوں, یہ بھی آفیشلی پورا پاکستان اور کشمیر بھی سنے, آپ کے تھرو میری ماں بھی سنے, آپ کی مسز بھی سنے کہ ماں جی میری سفارش کریں کہ میری ان کے ساتھ میٹنگ ہو جائے. ان دی اینڈ تھینک یو سو مچ. انسانیت زندہ باد, کشمیر پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائندہ باد. تھینک یو سو مچ.